Hi students, today is 15th of March 2020 and you have board exam on 17th of March 2020, the day after tomorrow. In this video, I am going to discuss with you the syllabus and all important topics which you should cover for your preparation. तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ? आई एम गोइंग टू टेल यू which part of the syllabus is very important for maths exam of 2020. So let's discuss without wasting our time. Our first chapter is relation and function. I know this topic looks little bit typical for you. In this topic there are mainly three topics which you have to touch. Number one, types of relation, in which you will find reflexive, symmetric and transitive type. तो सबसे पहले ये करना है आपको रिवाइज. After that you have to follow the topic of FOG and GOF. FOG और GOF की प्रॉब्लम्स आपको डिस्कस करनी है. You have to discuss, you have to revise the problems based on FOG and GOF. Then you have to revise finding inverse with 1 and onto. And I think this topic is very important and question may be asked from this topic. Finding inverse with 1 and onto. इसके अंदर आप इनवर्स फाइंड करना भी सीख जाओगे और 1 and onto प्रूव करना भी सीख जाओगे. This is all about of relation and functions. Now I am going to inverse trigonometry. Inverse trigonometry we have three main topic to discuss. Number one, problems based on principal value. Number two, प्रूविंग बाय टेकिंग सब्स्टिट्यूशंस, जिसमें आप सब्स्टिट्यूट करके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करते हो. तो उस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको जरूर रिवाइज करनी है. एंड देन कन्वर्टिंग वन एलिमेंट टू अदर, जिसमें हम साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में, टेन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स एक्स में चेंज कर देते हैं और उसके अंदर प्रॉब्लम्स करते हैं बेस्ड ऑन सॉल्विंग एंड प्रूविंग. तो इन दिस वे यू हैव टू रिवाइज all these topics of inverse trigonometry. Then come on to continuity and differentiation, which part is very important from the examination point of view for continuity and differentiation. Number one, simple continuity problems and inverse problems. Continuity के simple वाले type करने हैं पहले और inverse problems. In the inverse problems you have to solve all those questions in which finding the value of k, finding the value of a and b. This is very important from the examination point of way. Next is एनसीईआरटी में जो कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, these are very simple. You have to do each and every type of continuity based problems. और थोड़ा बहुत अगर आप चाहो तो डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट की एटलीस्ट कंडीशन भी आप देख सकते हो. नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड्स. दिस इज very important and I am quite confirm कि this topic may be asked in the examination. Differentiation by taking log both the sides. Then also take look revision of implicit functions, inverse trigonometry based differentiation and parametric form. तो यहां से भी क्वेश्चन उठ सकता है, बट continuity is very important. And next, differentiation by taking logarithm both the sides are most important topics and question may be asked from these two topics. Next, application of differentiation. There are too many topics in application of differentiation which we should properly revise is number one, applied problems of maxima and minima. सबसे पहले आपको all problems based on the applications of maxima and minima करनी है. Next, look revision of rate of change and tangent and normal. 1 6 mark question definitely will be asked from this topic of maxima and minima, and after that take look revision of rate of change and tangent and normal. मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा से आएगा एप्लीकेशन बेस्ड, और एक क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज या टेंजेंट एंड नॉर्मल में से कंफर्म है. सो डेफिनेटली पूरी की पूरी एनसीईआरटी आप इसकी रिवाइज करो इन दोनों टॉपिक्स की. नेक्स्ट, इंटीग्रेशन इज टू वास्ट. वी आर क्वाइट कंफ्यूज्ड कि कौन से पार्ट को टच करें और कौन से पार्ट को टच ना करें. विच टॉपिक वी शुड फॉलो एंड विच नॉट. एटलीस्ट इन टॉपिक्स को जरूर फॉलो करना माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बता रहा हूं. नंबर एक, इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये 7.4 एक्सरसाइज होगी in which you have integration based on some important formulas. Next, integration based on partial fraction. Next, integration based on by parts. तो मुझे लगता है एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का इन तीनों टॉपिक में से जरूर आएगा. नेक्स्ट, सम ऑफ लिमिट कंफर्म है, 100% है. सम ऑफ लिमिट का एक क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन सम ऑफ द लिमिट्स.
सो डेफिनेटली रिवाइज ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सम ऑफ लिमिट्स इंक्लूडिंग एक्सपोनेंशियल टाइप, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत उसको। नेक्स्ट, डेफिनेट इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी की एक्सरसाइज आई थिंक 7.11 है एज पर योर एनसीईआरटी बुक। रिवाइज ऑल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में से भी एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि आपको ये टॉपिक मस्ट कवर करने हैं। नंबर 1 विच, फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंडिंग एरिया ऑफ पैराबोला एंड लाइन, फाइंडिंग एरिया ऑफ सर्कल एंड लाइन, फाइंडिंग एरिया ऑफ इलिप्स एंड लाइन, finding area of modulus function. And before starting this topic, read all concepts, all equations of parabola, circle, line, triangle, ellipse and modulus type. इनकी सारी equations को पढ़ लो पहले टॉपिक को स्टार्ट करने के से पहले। Okay, then you can solve this topic in a very systematic manner and easy way. Next, differential equation, which is the last topic in calculus. Calculus बहुत important है my dear students, बहुत ज्यादा। लेट्स सी, इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। ये 4 टाइप की प्रॉब्लम्स आपको इसमें करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच यू विल फाइंड आर्बिट्री कांस्टेंट्स। मैक्सिमम वी हैव 2 आर्बिट्री कांस्टेंट टाइप इन आवर सिलेबस, सो रिवाइज देम ऑल इंक्लूडिंग ऑल मिसलेनियस बेस्ड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेपरेबल टाइप। नेक्स्ट, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस टाइप, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ईपीडीएक्स टाइप। इन तीनों में से एक तो कंफर्म है, जरूर आएगा। और अगर आप मेरे से जानना चाहते हो कि विच वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई विल गो फॉर होमोजेनियस टाइप। होमोजेनियस टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन इसमें से और एक फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन में से आएगा। सो क्रैक देम, सॉल्व देम, छोड़ना नहीं है कुछ भी। यू कांट लीव एनीथिंग। दीस डेज एग्जामिनेशन पैटर्न इज वेरी टिपिकल। यू हैव टच्ड ईच एंड एवरी पार्ट, फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर। तो नॉन कैलकुलस के अंदर आता है हमारा वेक्टर। तो वेक्टर और 3D ज्योमेट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमको क्या क्या करना है। तो वेक्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। लुक रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, एनसीईआरटी फॉर वेक्टर्स, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कोप्लानर वेक्टर्स एंड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर्स, जो मैंने एक्स्ट्रा से आपको करवाए, जो मैंने आपको आरडी में से करवाए। तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर करना आ सकते हैं। प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन जो की है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस, तो इसको आप जरूर ऑप्शनल एक्सरसाइज में जो कोप्लानरिटी ऑफ वेक्टर्स है, जिसके अंदर हमने ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था और उसकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस करे थे, उनको आपको जरूर रिवाइज करना है। एंड नेक्स्ट वन इज 3D ज्योमेट्री। तो 3D ज्योमेट्री में हमको क्या पढ़ना है। 3D अंडर द 3D ज्योमेट्री वी हैव टू लुक रिवाइज ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस, we have to revise shortest distance between lines and very important topic plane। प्लेन में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, तो उसके टॉपिक्स को मैंने यहां पर डिस्कस किया है। लेट्स सी हियर, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, इनके साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी फॉर फाइंडिंग लैम्डा एंड ऑल, सो दैट यू कैन फाइंड कंप्लीट इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइंस एंड देयर कोप्लानरिटी, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन, ये आपको आरडी में मिलेगा। इमेज ऑफ अ पॉइंट एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इन दोनों को कनेक्टिवली आपको एक ही टॉपिक के अंदर पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड प्लेन। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। तो प्लेन के अंदर ये पांचों टॉपिक आपको प्रॉपर्ली रिवाइज करके जाने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। एनीथिंग कैन कम इन द एग्जाम। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस, ठीक है। दिस टॉपिक इज आल्सो नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, यू कैन फाइंड इट इन एग्जाम्पलर, आपको इसका क्वेश्चन एग्जाम्पलर में मिल सकता है। नेक्स्ट, एलपीपी 6 मार्क्स का टॉपिक है एंड इट इज वेरी सिंपल, ज्यादा इसमें हर्डल करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डाइट प्रॉब्लम्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स एंड इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, टेबल बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग और डाइट में टेबल बनती है, उससे इक्वेशन सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमारे पास 4 टॉपिक है, कौन कौन से। लुक रिवीजन ऑफ कंडीशनल, पहला टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, उसे रिवाइज कर लो एनसीईआरटी में से। लुक रिवीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, वो भी है हमारे पास, इंडिपेंडेंट इवेंट का टॉपिक एनसीईआरटी में से, उसको भी आप रिवाइज कर लो। लुक रिवीजन ऑफ बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लुक रिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और मुझे लगता है कि मोस्टली क्वेश्चन बेस थ्योरम या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से पूछेगा, डैम श्योर। एंड नेक्स्ट, मस्ट ट्राई टू सॉल्व एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेस।
मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, आई हैव गिवन यू असाइनमेंट इन विच यू हैव एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेस थ्योरम, तो उनको जरूर रिवाइज कर लेना. नाउ वन थिंग इज लेफ्ट विच आई हैव नॉट रिटन ऑन दिस बोर्ड एंड दैट इज मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट. तो इसे भी मैं थोड़ा सा डिस्कस आप लोगों के साथ कर देता हूं कि इसके अंदर क्या क्या है. मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स. तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट तो नंबर 1 फाइंडिंग इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. फाइंडिंग इनवर्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में वी हैव टू टेक्निक्स, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. दोनों को रिवाइज कर लेना. नेक्स्ट मैट्रिक्स मेथड of finding A inverse and then finding the value of x, y, z. Next, proving equation, equal to 0 and then finding inverse, next finding AB product, finding AB product and finding inverse. Question based on finding AB product and then finding inverse you may find found in the NCERT before miscellaneous exercise. Miscellaneous के solved example में आपको इसका क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा. Okay, and last after inverse properties of determinant. जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है. तो डेफिनेटली वन क्वेश्चन मे बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. सो दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल स्टूडेंट. दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस which I had to discuss with you. I think you should not leave any of the discussed syllabus on this board. आपको हर पार्ट को जो मैंने अभी डिस्कस किया है जरूर करके जाना है, मस्ट करके जाना है. अगर आप इसमें से कुछ भी छोड़ते हो यू मे बी इन प्रॉब्लम एंड आई डोंट वांट दिस एज यू नो. तो यू हैव टू टच ईच एंड एवरी पार्ट एंड दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे. And if you revise all of them, definitely your exam will be better and you will crack the exam definitely. I am quite sure. तो please इस सारे syllabus को revise करके जाना, ठीक है. Today we have discussed, I have discussed with you all important topics. In the next video I will discuss you how to tackle the exam. तो अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम कैसे करना है, कैसे फॉलो करना है, कौन सी स्ट्रेटजी एग्जाम को करने के लिए हमें फॉलो करनी है. दैट्स ऑल. बाय बाय.